कांग्रेस के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के बेटे ने अपने वालिद पर सनसनीखेज इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि उन्हें अपने ही वालिद से जान का शदीद खतरा लाहिक है। उन्होंने बताया कि पसंद की शादी करने की तैयारी पर उनके वालिद सख्त नाराज हैं और वो इस रिश्ते को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एमएलए के बेटे का इल्जाम है कि उनके वालिद ने अपने मुसल्लह पैरोकारों को भेजकर उनकी मंगेतर के घर पर हमला करवाया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो और उनकी होने वाली अहलिया का खानदान इस वक्त शदीद खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी वक्त उन पर कातिलाना हमला हो सकता है, इसलिए हुकूमत और पुलिस को उन्हें और उनके ससुरालियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अपनी ही पसंद की शादी पर बाप की तरफ से इस तरह के सख्त रद्दअमल ने इस खानदानी तनाज़े को एक संगीन मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस आला सतही मामले और सनसनीखेज दावे के सामने आने के बाद मकामी सियासी हलकों में ज़बरदस्त सनसनी और हलचल मच गई है। मुतासरा नौजवान ने आला हुक्काम से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। నా మీద అందరూ వస్తున్నారు అని చెప్పి నాకు ఇద్దరితో ఇప్పించి తీసుకున్నావు అని నాకు చెప్పిన వాళ్ళని తీసుకొస్తే మమ్మీ మాట్లాడింది, నేను ఇవ్వాలి మీకు మనీ కాదు, నేను 6 months టైం పెట్టుకొని ఇస్తాను చేయడానికి అగ్రీ చేయలేదు, కానీ నీకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేసుకోవచ్చు, నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పారు. అలా మేము మా అత్తమ్మతో మేము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాము, పబ్లిక్గా చేసుకున్నాము, అందరికి తెలుసు, ఇంట్లో కూడా తెలుసు అందరికీ. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 1 month అవుతుంది ఇక్కడ ఉండి, వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నా, మా ఇంట్లో కూడా తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ నిన్న కొంతమంది ఒక 40 members అట్లా మా ఇంటిపైకి ఇక్కడ దాడి చేసినారు. ఆ ఎవిడెన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ వెనకాల మొత్తం అటాక్ చేసిన ఈ డోర్ పగిలిన అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఓన్లీ ఈ మ్యాటర్ అమ్మాయి విషయం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది. తప్పు చేసినట్టు నా మీద నింద చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే 1 month అవుతుందండి ఇక్కడ నేనున్నా అని తెలియదా, నేను చేసుకున్నప్పుడు తెలియదా, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు, తెలిసి కూడా ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇవాళ ఎవరో అప్పులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళని పిలిచి మీరు అందరినీ పిటిషన్లు ఇచ్చి ఇంటి మీద ఆడవాళ్ళ మీద దాడి చేసి ఎంతవరకు కరెక్ట్? అసలు టీఎస్లో చెప్పాలి కదా, వాళ్ళన్న కొంచెం మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలిగా. ఇప్పుడు నేను ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినా లైఫ్ మీద। बीआरएस के कारकान सदर के टीआर ने कहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद ही ओहदों और इक़्तिदार की अजीम कुर्बानी से रखी गई थी। उन्होंने अपना एक यादगार वाक़या बयान करते हुए बताया कि जब किसी आर ने 2006 और फिर 2008 में अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया तो मेरी इस वक्त प्रोफेसर जयशंकर सर से बहस हो गई थी। इस वक्त जयशंकर सर ने मुझे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में समझाया था कि किसी भी अवामी और इनकलाबी तहरीक के बुनियादी तौर पर 3 अहम मरहले आ पहलू होते हैं। उन्होंने बताया था कि तहरीक का पहला मरहला नज़रियात की वसी इशात है, जबकि दूसरा मरहला एहतजाज और सड़कों पर इंदविलन की राह इख्तियार करना है। जब ये दोनों मरहले आपस में मिलते हैं तो एक अजीम सियासी ताकत जन्म लेती है जो मांगने के बजाय हुक्म चलाने की सलाहियत हासिल कर लेती है। इसी सियासी कुव्वत के जरिए ही हमने दहली को झुकने पर मजबूर किया और बालाखर तेलंगाना की अलग रियासत का तारीखी ख्वाब पूरा कर दिखाया। केटीआर ने कहा कि जयशंकर सर के इन सुनहरी अल्फाज ने तहरीक की समत और कुर्बानियों की हकीकी अहमियत को साबित कर दिया है। ఉప ఎన్నికలకు కేసీఆర్ గారు ఒకసారి కాదు ఎన్నిసార్లు ఉప ఎన్నికలు వచ్చినాయంటే ఆ రోజుల్లో ఎన్నిసార్లు రాజీనామా చేసిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు మీకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీ పుట్టడమే పదవీ త్యాగంతో పుట్టింది. డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికను అనివార్యం చేసి ఉప ఎన్నికను ఆహ్వానించి అందులోంచి ప్రజాశక్తిని దేశం మొత్తానికి చూపెట్టింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. కానీ రాజీనామాలు రిపీటెడ్గా అవుతూ ఉన్నాయి. 2006లో 2008లో అయినప్పుడు నేను అడిగిన సార్ని, సార్ రెండోసారి ముఖ్యంగా 2008లో రాజీనామా చేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు నేను జయశంకర్ సార్తో కొద్దిసేపు వాదం పెట్టుకున్నా. మళ్ళీ ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి సార్, మొన్ననే చేస్తాం కదా 2006లో, సార్ ఎందుకు చేయాలి కేసీఆర్ సారు అన్న. అంటే ఆయన గొప్ప మాట అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకో రాము, ఉద్యమానికి 3 పార్శ్వాలు ఉంటాయి. మొదటి పార్శ్వం సెన్సిటైజేషన్, భావజాల వ్యాప్తి, అది నిరంతరం జరుగుతూ ఉండాలి. భావజాల వ్యాప్తి అంటే తెలంగాణకు జరుగుతున్న అన్యాయం పట్ల చర్చ జరుగుతూ ఉండాలి.
साबिक वजीर और रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर सर की अजीम शख्सियत और आजिज़ी को खराजन अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कभी खुद को बड़ा दानिशमंद मुफक्किर ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीकन तेलंगाना के दौरान जब कुछ लोगों ने तेलंगाना दानिश्वर तंजीम बनाने की तजवीज़ दी तो जयशंकर सर ने इंतहाई इनकिसारी से जवाब दिया था कि दुनिया में कोई खुद को दानिश्वर नहीं कहता तो मैं ऐसी तंजीम कैसे बना सकता हूं। लेकिन हाल ही में एक बेवकूफ़ शख्स ने यह बेबुनियाद दावा किया है कि पूरी रियासत तेलंगाना में सिर्फ 2 ही दानिश्वर मौजूद हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि जो लोग जयशंकर सर जैसी अजीम और अजीम अलमर्तबत शख्सियत के किरदार, सोच और इंकिसारी को नहीं समझते वही ऐसी लग़व और नामुनासिब बातें कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जयशंकर सर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी तकब्बुर और सियादत का इजहार नहीं किया बल्कि हमेशा अवाम की खिदमत को मुकद्दम रखा। ऐसे अजीम रहनुमाओं की सादगी से सबक हासिल करने के बजाय कुछ नाअहल लोग गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। तेलंगाना की अवाम खूब जानती है कि सच्चा मुफक्किर और रहनुमा कौन है और अपने फ़ायदे के लिए बड़ी बातें करने वाला कौन है। साबिक वजीर ने जोर दिया कि जयशंकर सर के नज़रियात और उनकी आजिज़ाना सोच तेलंगाना के हर शहरी के लिए मशलरा रहेगी। ఇంకా ఒక గొప్ప మాట విన్నా నేను ఒకసారి సార్ నుంచి, ఆంధ్రాలో ఒకడు శాల్వా మీద వేసుకొని వచ్చి తెలంగాణ మేధావుల సంఘం పెట్టి వచ్చిండు, మీకు కూడా గుర్తు. రాగానే మనోళ్ళు కొంతమంది వచ్చి సార్ మనం కూడా తెలంగాణ మేధావుల సంఘం పెట్టాలని వచ్చారు. ఏం సంఘము అన్నాడు. మళ్ళీ అంటే తెలంగాణ మేధావుల సంఘం సార్ అన్నాడు. అంటే మరి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నాడు. సార్ మీరు పెట్టాలి అని. నేను ఎట్లా పెడతానా, అది మేధావుల సంఘం అంటుంటారు, మేధావులు పెట్టుకోవాలి, మరి నేను ఎట్లా పెట్టాలి అన్నాడు. మేధావి అంటోడి ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు ఎవడు నేను చెప్పుకోలే మేధావిని అని. నేను ఒక సన్నాసి చెప్పాడుగా తెలంగాణలో ఎవడోడు మేధావులు. ఈ సన్యాసులకి అట్లాంటి గొప్ప వాళ్ళు అర్థం కారు. అంత గొప్పవాడు జయశంకర్ తాను ఎప్పుడు గొప్పగా ఊహించుకోలేదు, గొప్పగా అనుకోలేదు. తెలంగాణ జ్యోతిని ఆర్పకుండా నడిపిస్తున్న గొప్పతనం తనకి అని తను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. అంత గొప్పగా అంత నిరాడంబరంగా ఉంటూ మనందరినీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కలిసి కొట్లాడడానికి అద్భుతమైన స్ఫూర్తినిచ్చిన జయశంకర్ సార్ను తెలంగాణ ఉన్నంతకాలం అందరం కూడా యాద్ పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉందని తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के कानूरों में वाक़ई एक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला तालबा कानथियटी ओशनू ने पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुतवफ़िया ने 3 हफ्ते कबल ही तिब्बी शोबे के मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी के लिए इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था और वहीं हॉस्टल के कमरे में मुकीम थी। बताया जाता है कि हाल ही में अपने घर का दौरा करने के बाद वापस लौटने पर तालबा ने अपने वालिदैन को फ़ोन करके इतनी दूर रहकर तालीम जारी रखने में दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया था और वापस लाने की इल्तिजा की थी। वालिदैन ने इसे हौसला देते हुए समझाया और पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन की, लेकिन 4 तारीख को इसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर क्लास में जाने से माजरत कर ली। रात तकरीबन 9 बजे जब साथ रहने वाली 2 दीगर तालिबात कमरे में वापस आएं तो दरवाज़ा अंदर से बंद पाया, जिसके बाद इंस्टीट्यूट के अमले ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो ओशनू की लाश पंखे से लटक रही थी। वाक़ये की इत्तला मिलते ही हैदराबाद से पहुंचने वाले गमज़दा वालिदैन की शिकायत पर मकामी पुलिस ने मशकूक मौत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया है और खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए हॉस्टल के दीगर कमरों और सहेलियों से भी की जा रही है। इस अलमनाक हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के तलबा और मुतवफ़िया के इलाके में गहरे दुख और तशवीश की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद के नाम्पली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने गैर तस्लीम शदा कॉलेजों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिससे इलाके में ज़बरदस्त कशीदगी फैल गई। मुजाहिरीन ने शदीद एतराज़ उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अदम एतराज़ के सर्टिफिकेट की मंजूरी के लिए हाइड्रा कमिश्नर के फर्जी और जाली दस्तखत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है। हालात इस वक्त बिगड़ गए जब गुस्से में आए हुए मुजाहिरीन ने तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को तोड़कर हाइड्रा और बोर्ड दफ्तर की इमारत के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस के आला हुक्काम ने हालात को कंट्रोल में लाने और अमन व अमान कायम करने के लिए रुकावटें खड़ी की और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब मुजाहिरीन ने अपनी नारेबाजी जारी रखी और आगे बढ़ने की जिद की तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की इस फौरी कार्रवाई के बाद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर गाड़ियों के जरिए करीबी थाने मुंतकिल कर दिया गया ताकि बदनज़मी पर काबू पाया जा सके। इस पूरे हादसे और हंगामा आरआई के बाइस बोर्ड के दफ्तर और अतराफ के तमाम इलाकों में कुछ देर के लिए ट्रैफिक और आम आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर रही। पुलिस की इजाफी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में किया और इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है। मशहूर और तारीखी कालेश्वरम मंदिर की दोबारा तामीर के सिलसिले में कदीम इमारत के गिराए जाने के दौरान पुजारियों और मकामी लोगों में शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। बताया गया है कि बड़ी बड़ी जदीद मशीनरी और क्रेनों की मदद से एक हफ्ते के अंदर मंदिर के मुख्तलिफ हिस्सों ऊंचे राजगोपुरम और अर्ध गिर्द की तमाम दीवारों को मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामिया ने मंदिर को हटाने का ये अमल सबसे पहले जुनूब मगरबी कोने से शुरू किया और मरहला वार तरीके से तमाम तमीरात को हटाया गया। ताहम जब कार्रवाई के बिल्कुल आखिरी मरहले में मंदिर के सबसे मुक़द्दस हिस्से यानी गरबे गिरा यानी मुक़द्दस तरीन हुजरे को गिराया गया तो वहां मौजूद मकामी लोग और पुजारी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और आबदीदा हो गए। सदियों पुराने इस मजहबी मकाम से जड़ी गहरी अकीदत और यादों के बाइस पुजारियों और मकामी बाशिंदों के दिल भर आए और माहौल इंतहाई गमगीन हो गया। हुकूमत और औकाफी महकमे की जानिब से मंदिर की जगह अब एक निहायत शानदार पायदार और वसीतर पत्थर की नई इमारत की तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि इस अजीम और मुक़द्दस मंदिर को जदीद सहूलियात के साथ दोबारा शानदार अंदाज में तामीर किया जाएगा ताकि ज़ायरीन बेहतर तरीके से इबादत कर सकें। पुजारियों और अकीदतमंदों ने आने वाले दिनों में मंदिर की दोबारा खूबसूरत शुरुआत और पुरजोश तामीर की उम्मीद जाहिर की है। हैदराबाद के हयात नगर में वाक़े बंजारा कॉलोनी में बुध 5 अगस्त को एक अराजी तनाज़े ने इस वक्त इंतहाई पुरतशद्दुद और खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया जब अफराद के एक गिरोह ने हंगामा आराई करते हुए यतीम लड़कियों पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस मकान में मुकीम उन बेसहारा लड़कियों ने कुछ साल कबल मोहलिक वबाई बीमारी कोरोना के बाइस अपने वालिदैन को खो दिया था, जिसके बाद से वो यहाँ रहाइश पजीर थीं। हमला आवरों ने यह दावा किया कि जिस अराजी पर उन यतीम बच्चों की पनागाह कायम है वो ज़मीन सन 2009 में उनके नाम मुंतकिल की गई थी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम की शनाख्त सूना के तौर पर हुई है, जिसके बेटे ने मौके पर पहुंचकर मासूम लड़कियों को धमकाया और उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस हमले के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान शदीद हत्यापाई और हाथापाई शुरू हो गई, जिससे इलाके में ज़बरदस्त कशीदगी और खौफ का माहौल फैल गया। इस पुरतशद्दुद तसादुम और लड़ाई के दौरान 2 अफराद के सर पर शदीद चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज की गरज से करीब के हस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 3 अफराद को मामूली जख्म आए। पुलिस ने इस मुजरिमाना कार्रवाई का फौरी नोटिस लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और कानून के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी इक़दामात और तफ्तीश का आगाज कर दिया है।
وارنگل مغرب کے کانگریس MLA نائنی راجندر ریڈی کے کیمپ آفس کے سامنے اس وقت زبردست کشیدگی پھیل گئی جب ایک متاثرہ خاندان نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی۔ متاثرہ خاندان کے افراد اپنے ساتھ پیٹرول کی بوتل لے کر پہنچے اور کانگریس پارٹی کے مقامی رہنما بونتھا سارنگپانی کے خلاف شدید احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے سنگین الزام لگایا کہ مذکورہ رہنما کی جانب سے ان کی قیمتی اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ متاثرین نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اراضی تنازع کے بارے میں انہوں نے متعدد بار متعلقہ حکام کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا لیکن انہیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ بار بار شکایتوں کے باوجود کوئی اقدام نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر اس خاندان نے MLA کے دفتر کے سامنے پیٹرول انڈیل کر خود کو آگ لگانے کا اقدام کیا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے کمال کی ہوشیاری دکھاتے ہوئے فوری مداخلت کی اور متاثرین کو خودسوزی کرنے سے کامیابی کے ساتھ روک لیا۔ خودکشی کی کوشش ناکام بنانے کے بعد پولیس نے پیٹرول کی بوتل کو اپنی تحویل میں لے کر صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا اور علاقے میں امن قائم کیا۔ متاثرہ خاندان نے پولیس اور اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی شکایت پر شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور زمین پر ناجائز قبضہ روک کر انہیں فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ రోడ్ సార్ అది దండం కొట్టాలి محبت کے نام پر دھوکہ دہی اور 7 ماہ کی حادملہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک خاتون نے اپنے عاشق کے گھر کے سامنے شدید احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق پٹن چیرو کے رہائشی شراون اور ارونا نامی خاتون کی پہلی ملاقات لنگم پلی کے ایک کلینک میں ہوئی تھی جہاں سے ان کے درمیان نزدیکیاں بڑھیں۔ متاثرہ خاتون ارونا کا الزام ہے کہ شراون نے محبت کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے جس کے نتیجے میں وہ اس وقت 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ جب خاتون نے شادی کا مطالبہ کیا تو نوجوان نے صاف انکار کر دیا اور اسے تنہا چھوڑ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر ارونا نے پٹن چیرو میں واقع شراون کے گھر کے باہر بیٹھ کر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دھرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی اور لڑکی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر تشویش کا اظہار کیا۔ متاثرہ خاتون نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے اور دھوکہ دینے والے شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مقامی پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دے دی گئی ہے تاکہ دونوں فریقین سے بات چیت کر کے مسئلے کا قانون کے مطابق حل نکالا جا سکے۔ పైకి చూడండి ఎక్కడ ఉండేదా తను ఏది ఇది ఊరు పేరు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకున్నారు 3 years నుంచి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారు కదా మరి ఎలా ఎన్ని మంత్స్ 7 months అంటే స్రవంతోనేనా శ్రవణ్ ఇప్పుడు ఏం కావాలని కూర్చున్నారు ఇక్కడ న్యాయం కావాలి శ్రవణ్ కావాలి అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలంటున్నా డబ్బులకు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వీళ్ళకి డబ్బులు తీసుకో నాకు డబ్బులు నాకు న్యాయం కావాలి ضلع جنگاؤں کے رگھوناتھ پلی منڈل کے گاؤں کنچن پلی میں ایک خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب مئی کی فصل میں کام کرنے والی سوپنا نامی خاتون پر ایک بڑے اجگر نے اچانک حملہ کر دیا۔
इस गैर मुतवक्के हमले में खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसके बाद उसके घर वाले इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जंगांव एरिया अस्पताल ले गए। दिलचस्प और हैरान कुन बात यह रही कि अहल खाना ने हमला करने वाले इस अजगर को भी पकड़कर अस्पताल साथ ले जाने का गैर मामूली फैसला किया। डॉक्टरों के मुताबिक इस पकड़े गए अजगर की लंबाई तकरीबन 12 फुट बताई गई है, जिसने गांव वालों में खौफ व हरास फैलाया हुआ था। अस्पताल में मौजूद तिब्बी अमले ने फौरी तौर पर मुतासरा खातून का इलाज शुरू किया और ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टरों ने बताया है कि फी अलहाल सौपन्ना की हालत खतरे से बाहर है और इसे बेहतरीन तिब्बी मुराद दी जा रही है। दूसरी तरफ अस्पताल में 12 फुट लंबे अजगर को देखकर मरीजों और अमले में तशवीश फैल गई, जिसे बाद में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। जंगलात के महकमे को भी इस वाक़ये की इत्तला दे दी गई है ताकि वो सांप को अपनी तहवील में लेकर जंगल में छोड़ दें। మిత్రులారా, ఇది దీన్ని కొండ చీలువ అంటారు. ఈ పాము మన సైడ్ చాలా తక్కువ ఈ జాతి ఉండేది. సో దీంతో ఒక పేషెంట్ हैदराबाद के आसिफ नगर थाने की हुदूद में आयल मिल के करीब लकड़ियों से लदे हुए एक DCM ट्रक के गटर के ढक्कन में फंस जाने की वजह से बुध की रात काफी देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी का एक पहिया खिले आखस्ता हाल गटर के सुराख में धंस गया, जिसके बाइस ये भारी वहीकल बीच सड़क पर मुअत्तल होकर रह गई और ट्रैफिक की तवील कतारें लग गईं। इत्तला मिलते ही आसिफ नगर पुलिस की टीम ने फौरी तौर पर मौकान वारदात पर पहुंचकर ट्रैफिक को संभालने और मजीद इज़्दिहाम को रोकने के लिए हंगामी कार्रवाई शुरू की। सड़क पर फंसे हुए इस बड़े DCM ट्रक को महफूज तरीके से बाहर निकालने के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी क्रेन का इंतजाम किया गया। क्रेन की मदद से गाड़ी को कामयाबी के साथ सड़क से हटाए जाने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त रफ्ता रफ्ता मामूल पर आना शुरू हो गई। खुशकिस्मती से इस पूरे गैर मुतवक्के हादसे के दौरान किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान और फर्द के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस के आला अहलकारों ने खुद मौके पर मौजूद रहकर सड़क की सफाई और ट्रैफिक की रवानी को इस वक्त तक यकीनी बनाया जब तक कि हालात पूरी तरह से मामूल पर नहीं आ गए। जिला चौरू के सूजनगढ़ ख्वातीन अस्पताल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ज़ेरे इलाज खातून मरीजा के सर पर छत के प्लस्तर का एक बड़ा टुकड़ा नागहानी तौर पर गिर पड़ा। इस अचानक हादसे के नतीजे में खातून मरीजा के सर पर शदीद चोट आई, जिसके बाद डॉक्टरों को फौरन जख्म पर 2 टाके लगाने पड़े। अस्पताल की खस्ता हाल इमारत की मुख्तलिफ दीवारों में शदीद नमी और सहम उथोर के बाइस इमारत की ज़बूं हाली के मुताल्लिक इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार शिकायतें मौसूल हुई थीं। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के फौरन बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने हरकत में आते हुए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी महकमा तामरात आम्मा को हंगामी खत तहरीर किया है। खत में अस्पताल की खस्ता हाल इमारत की फौरी और जामे मुरम्मत के साथ साथ मरीजों की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने की सख्त ताकद की गई है। मकामी शहरियों ने इस अलमनाक वाक़ये पर शदीद बिरहमी और गुस्से का इजहार करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे की लापरवाही को इसका असल जिम्मेदार करार दिया है। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह की संगीन लापरवाही से गरीब मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहिक हो रहे हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पताल की इमारत की फौरी मुरम्मत करवाई जाए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के मजीद हादसात से बचा जा सके। जिला खम के महकमा एक्साइज और ड्यूटी के हुक्काम ने मुनशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गांजा नजर आतिश करके तलफ कर दिया है।
शोबाए ड्यूटी के आला अफसरान ने नजर आतिश की जाने वाली इस मुनशियात की कल मिकदार 696.1 किलोग्राम बताई है, जिसकी बैन अल अक़वामी मार्केट में तखमीना कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। जब्त शदा ये तमाम गांजा जिला के 4 मुख्तलिफ यकसां और अहम थानों में दर्ज 32 अलग अलग मुकदमात के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिप्टी कमिश्नर सवामी रेड्डी के वाज़े और सख्त अहकामात व हिदायत पर अमल करते हुए गोपालपेट के मंजूर शदा और खुसूसी मरकज़ में इस तमाम मवाद को जलाकर तलफ किया गया। इस हंगामी और बड़े अक़दाम के मौके पर महकमा एक्साइज़ के कई आला हुक्काम और अमले की मौजूदगी में कानून के तमाम ज़वाबित को मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया। ज़िला में मुनशियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और नकलो हमल को रोकने के लिए महकमा एक्साइज़ की जानिब से मुसलसल सख्त इक़दामात और निगरानी जारी है। पुलिस और महकमा एक्साइज़ के हुक्काम ने वाज़े किया है कि ज़िला को मुनशियात से पाक बनाने के लिए इस किस्म की सख्त कार्रवाइयाँ आइंदा भी बिला तात्तुल जारी रहेंगी। अवाम ने महकमा एक्साइज़ के इस बरवक्त और मौसर अक़दाम की तारीफ़ की है, जिससे मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासिर को सख्त पैगाम मिला है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला संत कबीर नगर में एक निहायत गैर मामूली और हैरान कुन वाक़या सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी की शादी इसके आशिक से करवा दी। इस जूड़े की 21 साल पहले पसंद की शादी हुई थी और उनके 5 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 माह कबल खातून को अपने ही गांव के एक नौजवान से मोहब्बत हो गई जो इससे 13 साल छोटा था। खातून 2 माह कबल इस नौजवान के साथ घर छोड़कर चली गई थी और जब वो हाल ही में वापस लौटी तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद तनाज़ो और बहस व मुबर्रा हुआ। मामले की संगीनी को देखते हुए दोनों फरीक़ैन और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई ताकि इस अनोखे मसले का कोई हल निकाला जा सके। तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद शौहर ने एक बड़ा और गैर मुतवक्के फैसला करते हुए अपनी बीवी की रजामंदी से इसकी शादी इसके आशिक के साथ करवा देने का फैसला किया। तीनों खानदानों की मौजूदगी में तमाम ज़रूरी रसूमात अदा की गईं और शौहर ने अपनी बीवी को इसके नए हमसफ़र के साथ इज़्ज़त के साथ रुख़सत कर दिया। इस अजीब व गरीब और अनोखे फैसले की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो ये तमाम मकामी लोगों और सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गई। 5 बच्चों की देखभाल और परवरिश अब उनका वालिद खुद करेगा, जबकि गांव के लोग शौहर के इस ज़ब्त और हौसले पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर इजाफी चार्जेस आयद करने की इजाज़त देने वाले अहम तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। ऐवान में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में तरमीम के बिल को बहस और मुबाहिसे के बगैर ही मंजूर कर लिया गया। इस नए बिल की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत ने बैंकों को यूपीआई मालियाती खिदमात पर सार्फिन से चार्जेस वसूल करने का कानूनी इख्तियार फराहम कर दिया है। इस फैसले के बाद अब बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक यूपीआई के जरिए की जाने वाली रकम की मुंतकली पर फीस लागू कर सकेंगे। ऐवान ज़ेरी में बगैर किसी अपोजिशन बहस और तफसीलात के इस बिल के पास होने पर मालियाती हलकों और आम आवाम में हैरत का इजहार किया जा रहा है। नक्कादों का कहना है कि इस फैसले से मुल्क में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ को शदीद झटका लग सकता है और आम शहरी मुतासिर होंगे, जबकि दूसरी जानिब बैंकिंग शोबे का मानना है कि इस इक़दाम से बुनियादी ढांचे और सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी माली वसाइल दस्तयाब होंगे। अब इस बिल को हतमी मंजूरी और कानून का रूप देने के लिए राज्य सभा और सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा।